ملک کے اندر کرپشن کا جو نظام ہے، کرپشن اینٹی کرپشن جو ادارے ہیں وہ ڈلیور نہیں کر سکیں گے تو ملک کی معیشت نہیں بڑھے گی. اور یہ وہ نقصان ہے جو کوانٹیفائی کیے گئے. بتایا گیا کہ یہ 5500 سے 7000 ارب کا نقصان ہم ہر سال کیے جا رہے ہیں کیونکہ ہم ریفارمز نہیں کر سکتے، ہم کرپشن کو کنٹرول میں نہیں لا سکتے. اور ابھی اگر اس کے اندر صوبائی ادارے ڈالیں گے، صوبائی حکومتیں ڈالیں گے تو بات بہت آگے بڑھ جائے گی. اس لیے آج ضرورت ہے کہ اس معاملے پر ملک کے اندر ڈیبیٹ ہو. ہم اپنا ایجنڈا خود طے کریں کہ ہم نے کیسے اپنے ملک کو ترقی دینی ہے. ہم IMF کا انتظار مت کریں کہ کل وہ قدغنیں لگائے گا، ہمیں وارننگ دے گا، ہم پھر ڈیفالٹ کی طرف ہم چل پڑیں گے، پھر ہم مجبور ہو کر اپنے فیصلے کریں گے. ہمیں خود آج ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. یہاں مقصد کوئی تنقید برائے تنقید نہیں ہے. یہ ملک جتنا حکومت کا ہم سب کا ہے، یہ ملک جتنا اپوزیشن کا اتنا ہمارا بھی ہے. اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ آج ملک کے حالات کو درست کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. لیکن یہ درستگی جو ہے وہ ایک دو عناصر سے نہیں ہوتی، یہ ایک پورا پیکج ہے جو IMF نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اگر ہم اس ریفارم کو نہیں اپنائیں گے تو پھر آگے ترقی کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. یہ پیغام ہے جو اس کا ہے، اور یہی پیغام لے کر ہم آج آپ کے سامنے یہاں بیٹھے. کوئی سوال؟ آپ ایک مجھے سیاستدان ہیں، بہت گہری نظر ہے. ایک ایسے ملک میں جہاں میڈیا کی آپ نے بات کی، میڈیا کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، عدلیہ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. 26 نومبر یہاں پہ ہوتا ہے، ملید کے جیسے واقعات ہوتے ہیں. ایسی صورتحال میں آپ کیا تجویز کریں گے؟ کس سے ڈائیلاگ کرنا ہے، کیسے ڈائیلاگ کرنا ہے؟ اس ملک میں ڈیموکریسی، جمہوریت، عدلیہ اور میڈیا کیسے آزاد ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، آزاد کیسے ہو سکتا ہے؟ رول آف لا سے. یہ رپورٹ کیا کہتی ہے؟ قانون آئین کی بالادستی ہونی چاہیے. وہ نہیں ہوگی آپ کی معیشت ترقی نہیں کرے گی. یہ باتیں ہر روز پاکستان میں آپ ٹی وی چینل پہ جہاں بھی موقع کسی کو ملتا ہے یہی بات ہوتی ہے. ایڈیٹوریل میں یہی بات ہوتی ہے، جو آرٹیکل لکھے جاتے ہیں یہی بات اس میں ہوتی ہے. یہ سب چیزیں آپس میں جڑی ہیں. اگر یہ آپ کسی کو توقع ہے کہ ملک میں جمہوریت کے بغیر، ملک میں رول آف لا کے بغیر معیشت ترقی کر لے گی، یہ خیال اپنے ذہن سے نکال. رول آف لا کیسے واپس لانا ہے؟ رول آف لا آئین کو پڑھیں. یہ رول آف لا ملک میں اسٹیبلش کرنا ہر آئینی عہدیدار کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ سیاست میں ہے، چاہے وہ حکومت میں ہے، چاہے وہ پارلیمان میں ہے، چاہے وہ مسلح افواج میں ہے، چاہے وہ جوڈیشری میں ہے. یہ ہم سب حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم آئین کا دفاع کریں گے، آئین کی پاسداری کریں گے. یہ رول آف لا ہوتا ہے. جی ہاں جی، ایک منٹ رضا المصطفیٰ صاحب. جی جی سوال یہ ہے، 2 سوال ہے. پہلا سوال آپ سے سر سے ہی پوچھیں گے کہ یہ بتائیں کہ اپوزیشن ایک تحریک کا ماحول بنا رہی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک کے ذریعے اب منزل حاصل ہوگی؟ اور دوسرا یہ کہ مفتاح اسماعیل صاحب وزیر خزانہ رہے، آپ وزیر اعظم رہے، جو ریفارمز آپ اب بتا رہے ہیں آپ نے اس دور میں کی تھی؟ جی، یہ بہت اچھے سوال ہیں. اپوزیشن جو ہے وہ تحریک کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اپوزیشن کو جب پارلیمان میں جگہ نہیں ہوتی تو اپوزیشن باہر جاتی ہے. ریفارمز اپنے ہر حکومت وقت کے ساتھ چینجز، ریفارمز، اصلاحات یہ کرتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ میں نے اور مفتاح صاحب نے 10 مہینے میں جتنی معیشت کے اندر ریفارمز کی پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کی. آپ اپنا جو ٹیکس پیمنٹ تھی 2018 کی اس کو نکال کر دیکھ لیں. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ بہت وسیع بنیاد پر ٹیکس ریفارمز کیے گئے. جی جی بھائی، جی بھائی، بھیا یہ جلسہ نہیں ہے یار. ایسا یہ تو ہے کہ آپ نے اس ملک میں 3 مرتبہ وزیر اعظم رہنے والے جو ہیں انہوں نے کہا کہ جنہوں نے، آپ بھی پہلے کہتے رہے کہ عمران خان کی جو حکومت تھی اس نے معیشت کی دوائی نکال دی، سب کو تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی جنہوں نے ان کو لایا تھا وہ اس سارے کے ذمہ دار ہیں، تو ان کو بھی کٹہرے میں لایا جانا چاہیے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت میں آپ وزیر اعظم بھی تھے، ایک تو گرفتار ہے وہ تو نظر آ رہا ہے سب کو،
नाम भी लिया करते थे नवाज शरीफ साहब, और दूसरे को एक्सटेंशन दे दी आपकी हुकूमत ने, उन जड़ों को भी पकड़े जाने की जरूरत आप समझते हैं कि जिस देखें यहाँ पे हम सब काबिल एहतसाब हैं। एहतसाब ये IMF कह रहा है कि आपके एहतसाब का निज़ाम ही नाकाम है, क्योंकि वो मखसूस मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आज कोई ये कहे कि मैं बरी ज़िम्मा हूं, जो कुछ पाकिस्तान में हुआ है तो मैं उस बात को कबूल नहीं करता। एहतसाब आपने करना है, फिर सबका एहतसाब करें, लेकिन आज कम अज कम जो सबक आपने हासिल किए हैं माजी से, उनको तो मत दोहराएं। अगर माजी में इलेक्शन चोरी होते थे, आज इलेक्शन चोरी नहीं होने चाहिए। अगर माजी में करप्शन होती थी, आज करप्शन को रोकने की जरूरत है। आज करप्शन मुल्क के अंदर बदतरीन सतह पर है। ये पॉलिसी कैप्चर, पॉलिसी की करप्शन का मैंने कभी किसी इंटरनेशनल इदारे में रेगुलेटरी कैप्चर का मैंने कभी नहीं सुना था। ये पहली दफा है कि IMF के जैसे इदारे की रिपोर्ट में ये बात, और इस पर बार बार इस पर उन्होंने जोर डाला है कि ये आपके मुल्क के अंदर हो रहा है, इसको आप अगर नहीं रोकेंगे आपकी मईशत नहीं चलेगी। शोएब भाई, शोएब निजामी जी, एक तरफ तो इस वक्त जो वाशी आपने सूरत का तस्करा किया करप्शन का, और दूसरी तरफ बहुत यानी एक ऐसे सिचुएशन से हम लोग जा रहे हैं पाकिस्तान के दहशतगर्दी जो आती है, इसका इस सारे जो मौजूदा सिनेरियो है, इसका जिम्मेदार जिस तरह आप कह रहे हैं हुक्मरान तबका है, तो इसमें अपोजिशन की जो जिम्मेदारी किसी प्लेटफॉर्म पर सिर्फ इख्तियार नहीं बल्कि कोई डायलॉग की तरफ अपोजिशन को भी आना चाहिए था। तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ आप क्या समझते हैं कुछ अपोजिशन की तरफ से बेहतर में की जा रही है कि कुछ एक पॉइंट पे जो दहशतगर्दी है जो नासूर बढ़ रहा है और पड़ोस के ममालिक से खतरात भी जन्म ले रहे हैं, तो इस तनाज़र में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुल्क के मामला सबकी जिम्मेदारी होती है। पार्लिमानी निजाम में सिर्फ हुकूमत नहीं होती, अपोजिशन भी होती है। दोनों को अपना किरदार अदा करना है। आज की अपोजिशन हुकूमत के अंदर भी है, उनके पास भी हुकूमत है, जो इक़्तिदार में उनके पास बहुत सी हुकूमतें हैं। तो क्या हम आपस में बातचीत नहीं कर सकते? इतनी बात है। मैं बार बार कहता हूं, पाकिस्तान में डायलॉग के अलावा कोई हल नहीं है। आपको बैठकर मुल्क कैसे आगे चलेगा, कैसे रिफॉर्म्स होंगे, क्या इस्लाहात हमने करनी है, ये आपको बैठकर बात करनी पड़ेगी, वरना कोई आगे मुझे कम से कम रास्ता नजर नहीं आता। शोभा इसके बाद जो है वो कल बयान भी दिया है, उन्होंने जो हाइब्रिड निजाम है इसका दफा भी किया है, और फिर वहीं पर उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को जो लाने वाले हैं उनका भी जो है वो एहतसाब होना चाहिए। तो इस वाले से आपकी क्या राय है? तो मैं तो कह दिया कि एहतसाब सबका होना चाहिए, लेकिन आप किस किस का एहतसाब करेंगे? आप मुल्क चलाएंगे, एहतसाब ही करते रहेंगे। एहतसाब के इदारे के बारे में IMF ने आपको भी कह दिया है, एक इंडिपेंडेंट इदारे ने बता दिया कि आपके एहतसाब की हालत क्या है। मियां नवाज शरीफ पॉलिटिकल लीडर हैं, उनकी मर्जी है जो बयान दें, उस बयान का वो दिफा खुद करेंगे या जो भी उन्होंने बात की है। वो आज हुकूमत में है, उनके एहतसाब उनके हाथ में है। उनके पास 2 सूबों में हुकूमत है, वफाक में हुकूमत है, 2/3 अक्सरियत है। जो करना चाहें कर सकते हैं, उनकी जमात कर सकती है। शोएब भाई, आपने कानून की बालादस्ती की बात की है, और इस वक्त आप क्या समझते हैं जो सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर बनी हुई है, इसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा मुस्लिम लीग नून पर आयद होती है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर? कानून की बालादस्ती के लिए दोनों जमातें अगर आपसे राब्ता करती है तो आप किससे बात करेंगे? यार, राब्ता हम तो जो पाकिस्तान की मुफाद की बात करेगा उससे हम बात करेंगे, जो आइन की बात करेगा उससे बात करेंगे। बात ये नहीं है कि किससे बात करनी है, कब करनी है। क्या हमारे अंदर कोई ये एहसास नहीं है कि मुल्क कहां पर जा रहा है? आपने 2 तरामीम की हैं, 2/3 आईनी तरामीम की हैं 2/3 अक्सरियत के साथ। उन आईनी तरामीम में मुझे पाकिस्तान के अवाम या मुल्क का कोई मुफाद बता दें। तो जब हमारी रवैया ये होगा, सोच ये होगी, मैं ये रवैया और सोच बदलने की जरूरत है। आज हमारा मुल्क मुश्किल है, मुल्क की बात करें। हम अपनी बात करते हैं, अपने इदारों की बात करते हैं, अपने मुफाद की बात करते हैं, अपनी कुर्सी की बात करते हैं। हम बात करते हैं कि किस तरह मजीद ताकत हासिल की जाए। इससे मुल्क नहीं चलते। सर, 2 तरामीम हुई हैं, किसी जगह भी आपका हमें जारियाना रवैया नजर नहीं आया, लेकिन मरी के लोगों की जब बात हुई है फिर आप मैदान पे आ गए हैं। आपको मरी ज्यादा अजीज था या पाकिस्तान? अगर 2 तरामीम हुई है तो आपको मैदान में आना चाहिए। मुझे सारा पाकिस्तान अजीज है। मैदान क्या होता है? ये मैदान है ना। हम आज बात कर रहे हैं कि आईनी तरामीम की उस वक्त भी बात की है, आज भी बात की है। मैं ये सिर्फ पूछता हूं कि आईनी तरामीम 2/3 अक्सरियत से की गई हैं,
2/3 जिन लोगों ने वोट डाले हैं, क्या उनको इस बात का एहसास है कि उसका क्या असर मुल्क पर इन तरामीम का पड़ेगा, या 2/3 अगर अक्सरियत है तो क्या उसको पाकिस्तान की बेहतरी के लिए तरामीम करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, या सिर्फ वो चंद मखसूस मकासद के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है? शोएब भाई, मेरा सवाल ये है कि अभी जैसे यूएनडीपी की रिपोर्ट आ गई हमारी जो डिस्ट्रिक्ट पॉवर्टी उससे मुताबिक लेबर फोर्स सर्वे भी आ गया, आईएमएफ की रिपोर्ट भी आ गई, इसके बाद आप क्या समझते हैं कि एनएफसी के फार्मूले में कोई चेंजेस होनी चाहिए, और उसके बाद कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा पाकिस्तान में पीएफसी भी और डीएफसी भी? देखिए, ये जो एनएफसी की बात है इस पर डिबेट की जरूरत है। हर आईनी मसला जो है ये डिबेट के जरिए हल होता है। हर एक की बहुत सी राय सामने आती हैं, जब वो राय इकट्ठी होती हैं आपको एक बेहतर हल मिलता है। अगर आप डिबेट नहीं कराएंगे, ना उस फैसले की कोई ओनरशिप होती है, ना उसको कोई कबूल करता है, और ना वो एक बेहतर फैसला होता है। तो जो ये जमहूरी निजाम, पार्लिमानी निजाम की खूबसूरती होती है कि उसके अंदर हर एक की राय शामिल हो, मुल्क के अंदर एक वसी सतह की डिबेट हो, और फिर ये फैसले किए जाएं। सर, अपोजिशन जमातें, आपने रूल ऑफ लॉ की बात की, अपोजिशन जमातों ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक बनाई थी, आप शुरू में उन इजलासों में शिरकत भी करते रहे एज एन ऑब्जर्वर, लेकिन अब आप उनके इजलासों में शिरकत नहीं कर रहे, क्या आप अपनी पार्टी अलग जदोजहद करेगी या उनके साथ शिरकत करेंगे बाद मुस्तक़बिल में? नहीं, देखिए, आइन के लिए जो काम करेगा हम उसके साथ हैं। अभी भी जो पिछली मीटिंग हुई थी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की, हम उसके अंदर शामिल थे। तो वो ये कोई वो सियासत की बात नहीं है, ये एक मकसद की बात है, और मकसद बड़ा वाज़ेह है, और ये हम सब का ईमान है इस बात पर कि मुल्क आइन के बगैर नहीं चल सकते। जब तक हम आइन की कदर नहीं करेंगे, आइन की बालादस्ती नहीं होगी, मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकेगा। ये आज आईएमएफ भी आपको बार बार ये बात लिखता है कि रूल ऑफ लॉ कहां पर गया। ये बुनियादी बातें हैं जो हमें समझने की जरूरत है। जी जी, दो तरमीमें तो पास कर दी, अब तीसरी तरमीम लाई जा रही है, जिसके आप क्या कहेंगे? दूसरा भी ज़मीनी इलेक्शन हुआ पंजाब में, पीटीआई तो रोना रोएगी कि यहाँ धांधली हुई है, पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है कि धांधली हुई है वहां पर, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, वो इक़्तिदार में बैठे हैं, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दोनों बैठ के फैसला कर लें धांधली हुई है नहीं हुई। ये पाकिस्तान की रवायात बरकरार रखी गई हैं, हर इलेक्शन में धांधली होती रही है, तो वो रवायात हमने बरकरार रखी हैं। तो बाकी जो 28वीं ले आए, 29वीं ले आए, 30वीं ले आए, अगर उसमें पाकिस्तान के अवाम की बात नहीं है, पाकिस्तान के मुफाद की बात नहीं है, पाकिस्तान की बेहतरी की बात नहीं है, रिफॉर्म्स की बात नहीं है, तो वो बेमकसद तरामीम है। एक क्वेश्चन ले लीजिएगा कि जी, मौजूदा मामला ऐसे लग रहे हैं कि जैसे केपी और वफाक या केपी पंजाब आमने सामने होने जा रहा है, क्योंकि सर खान साहब से मुलाकातें नहीं हो पा रही है, और उसके खिलाफ जो है वो हम पीटीआई का जो सोशल मीडिया या उनके पार्लियामेंटेरियन से उनके ट्वीट हमने देखे, उन्होंने कहा कि जी हम केपीके में इंटरेस्ट बंद कर देंगे। तो सर, क्या इस तरह का मामला मजीद गंभीर हो सकते हैं और केपी और पंजाब या वफाक आमने सामने हो सकता है? सर देखिए, इस बात की गुंजाइश नहीं है। ये जो रिश्ते सूबे के वफाक के होते हैं, ये आईनी रिश्ते होते हैं, ये आइन में बड़े वजाहत से बताए हुए हैं। तो अगर हुकूमत आइन को कुछ समझती नहीं है तो फिर अपोजिशन भी कुछ नहीं समझेगी, तो मुल्क कैसे चलेगा? तो आज जरूरत इस बात की है कि खास तौर पर जहां पर टेररिज्म की बात है, जो आईनी रिश्ते हैं इनको बरकरार रखने की जरूरत है, इनको बढ़ा